हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल हम लोग पढ़ रहे थे स्पेशल एंट्री, जिसमें कुछ हमने आपको बताया था और बोला था कुछ और शेष रह गए जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं बैड डेट। सम टाइम गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट एंड इफ द अमाउंट बिकम irrecoverable due to his insolvency or some other reason, then the amount not recovered from debtors is called bad debts. For recording this transaction in the books of account, bad debts account will be debit and debtors account will be credit. So the amount which is not recovered from debtors due to insolvency or some other reason, that amount is called bad debts. And this is happened when the goods are sold to customer on credit. So when we sold the goods on credit and the amount so not recovered from debtors, this amount is called bad debts. For recording this transaction in the books of account, bad debts account will be debit and debtors account will be credit. For example, Ravi, whom owed us 10,000, is declared insolvent and 30 paisa is received in a rupee from his estate. The general entry will be Ravi से कितना लेना था 10,000, क्या हो गया वो इंसॉल्वेंट, और 1 रुपए में कितना मिल रहा है केवल 30 पैसा। तो 30,000 10,000 का 30 पैसा मतलब 30%, दैट इज 3,000। मतलब 3,000 रवि से रिसीव्ड हो रहा है और 7,000 रवि से रिसीव्ड नहीं हो रहा है। तो द अमाउंट व्हिच इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रवि, दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स एंड एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन इज कैश अकाउंट डेबिट bad debts account debit to Ravi. 5 columns for 10. कितना रवि का अमाउंट था 10,000, कितना रिसीव हुआ 30% 3,000, कितना नहीं रिसीव हुआ 7,000. So the amount which is not received from Ravi, that amount is called bad debts. Narration being 30 paisa received in a rupee from Ravi. So when we sold the goods on credit to debtors and the amount not recovered from debtor due to insolvency or some other reason, the amount so not recovered is called bad debts. And for recording this transaction, entry will be bad debts account will be debit and debtors account will be credit. तो debtors कौन है रवि, और जो नहीं मिला अमाउंट that is called bad debts. अगर full amount not received होता rupees 10,000 owed to Ravi and nothing is received from his estate, then entry will be bad debts account debit to Ravi और अमाउंट कितना होता 10,000। लेकिन इसमें 30 पैसा रिसीव हो रहा है, इसलिए बैड डेब्ट्स का अमाउंट जो हुआ वो कितना हुआ 7,000 और कैश में कितना लिखे हैं 3,000। अब आगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। समटाइम्स इट इज हैपेंड दैट के बैड डेब्ट्स प्रीवियसली रिटन ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। इन सच ए केस cash account will be debit and bad debts recovered account will be credit. Entry will be cash account debit to bad debts recovered account. अगर जो bad debts हो गया due to some reason or other reason, if this amount of bad debts is recovered in the future, in that case cash account will be debit and bad debts recovered account will be credit. Next, expenditure on installation of machinery and on the erection of building. Machinery and building are the assets of the business, and any expenditure incurred on the installation of machinery, that is freight,
transit expense, installation expense, wages paid for the installation, etc. It is treated as capital expenditure. In that case, expense account will not be debited. In that case, assets account, that means machinery account, will be debit and cash account will be credit. So if any expenditure incurred on the installation of machinery, that is wages, carriage, installation expense, etc., in this condition expense account will not be debited. In this condition assets account will be debit and cash account will be credit, because this is a capital expenditure. Capital expenditure are those expenditure which are incurred at once, but we can derive the benefit from these expenditure for a long period, or these expenditure are not incurred again and again. So the expenditure which are incurred at once but derive the benefit for a long period, such expenses are called capital expenditure. And in the case of capital expenditure, expense account will not be debited, assets account will be debited. Entry will be assets account debit to cash account. That means machinery account debit to cash account. Similarly, any expenditure incurred for the construction of a building, such as purchase of material and payment of wages, are also treated as capital expenditure. As such, building account will be debit. However, repair charges incurred on such assets which is already appearing in the books are debited to repairs. इसी तरह अगर बिल्डिंग के लिए भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करें तो उसके लिए भी हम लोग बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर मशीनरी के रिपेयर्स के लिए हम कोई एक्सपेंस इनकट करते हैं और वो मशीनरी पहले से ही क्या हो, परचेज हो, तो उसके लिए हम लोग एसेट्स अकाउंट को डेबिट ना करके रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, बिकॉज इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड अगेन एंड अगेन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है तो उसमें एसेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, बट इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दैट केस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो ये तीन आज स्पेशल एंट्रीज और रह गई थी। बैड डेब्ट्स, द अमाउंट व्हिच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यू टू इंसॉल्वेंसी एंड सम अदर रीजन आर कॉल्ड बैड डेब्ट्स, एंड एंट्री फॉर द बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंड सेकंड वन इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, द अमाउंट व्हिच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेब्ट, बट दिस अमाउंट इज रिकवर्ड इन द फ्यूचर due to any reason, that amount of bad debts is called bad debts recovered, and entry will be cash account debit to bad debts recovered account. And next will be expenditure incurred on the machinery and installation of machinery and on the erection of building. If any expenditure incurred on the erection of machinery, that is carriage on machinery, freight on machinery, wages on erection of machinery, installation expense, etc., in this condition machinery account will be debit and cash account will be credit, because it is a capital expenditure, and capital expenditure are those expenditure which are incurred at once, but we can derive the benefit from these expenditure for a long period, or these expenditure are not incurred again and again. Similarly, if any expenditure incurred on the construction of buildings, such as purchase of material and payment of wages, are also treated as capital expenditure, and such a case building account will be debit and cash account will be credit. Repair charges incurred on assets which is already appear in the books are debited to repairs account. So these entries are special entries, and these entries are passed in the books of account on the following circumstances जो हमने कल से लेके आज तक देखा। Last thing, that is recording of banking transaction. अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को हमको अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करना है तो उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करें? देखिए, इसके लिए ये सारे रूल्स जरूर है, लेकिन इन रूल्स को बिना जाने भी हम ये सारे ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर केवल हमें दो चीज पता, रूल्स ऑफ अकाउंट, और जनरली इसमें जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे वही तीनों अकाउंट के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अगर ये रूल्स ऑफ अकाउंट हमको पता है तो बिना ये सारे इंग्लिश जितने भी हम आपको बताएंगे उनको हम बिना लर्न किए वेरी इजीली अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमने छोटा सा रूल बताया था, रिसीवर डेबिट
giver credit comes in debit, goes out credit for nominal real account, this is for real account, this is for personal account, and nominal account के लिए expense debit and incomes credit. बस ये तीन रूल आपको माइंड में रखना है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट एंड एक्सपेंस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट. Now how can we record the banking transaction in the books of account? It is very easily understood by us by these rules. First, when cash is deposited into bank, कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट जो होता है इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय बैंक. बैंक में कैश डिपॉजिट किए तो रिसीवर कौन हुआ? बैंक. और क्या गया हमारे पास से? कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, रिसीवर बैंक है और कैश गया. रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट, और कैश को क्या करते हैं? व्हाट गोज आउट? क्रेडिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सेकंड, बैंक कैश इज विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विथड्रू किया, क्या हमारे पास आया? व्हाट कम्स इन द बिजनेस? कैश, और गिवर कौन है? बैंक. तो देखा हमने पहले कहा था, इफ यू नो द रूल्स ऑफ जनरल देन यू कैन वेरी इजीली प्रिपेयर दिस बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, नॉट नेसेसरी टू लर्न दिस एंट्री. कैश आया, गिवर बैंक है, तो कैश कम्स इन, सो कैश डेबिट एंड बैंक इज द गिवर, सो बैंक इज क्रेडिट. When check, draft, etc. received from customer and deposited into bank on the same day. कस्टमर से चेक ड्राफ्ट मिला और उसको उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया, तो रिसीवर कौन हुआ? बैंक. और गिवर कौन दे रहा है? ये कस्टमर. तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट and customer account will be credit. When check, draft, etc. received from the customer and not sent to bank on the same day. कस्टमर से बैंक चेक ड्राफ्ट हमको मिला लेकिन उसको हमने उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया, तो उसको हम लोग कहते हैं चेक इन हैंड. वो हमारे पास है, वो हमारे पास आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. और ये अगर अगला दिन बैंक में जमा कर रहे हैं चेक को, तो रिसीवर कौन हुआ? बैंक. और व्हाट गोज आउट फ्रॉम अस? चेक. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट. अगर उसी दिन जमा कर देते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. बट दिस चेक्स एंड ड्राफ्ट आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे. तो इसमें दो एंट्री बनाते हैं, पहला जब हमको चेक रिसीव हुआ है या ड्राफ्ट रिसीव हुआ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट to customer personal account, and then this check is deposited into bank account debit to check in hand account because receiver is the bank and check is goes out from us. When a check is previously deposited into bank is dishonored. चेक बैंक से मिला, कस्टमर से मिला था और उसको हमने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन वो चेक आगे जाकर के डिसऑनर्ड हो जाए, मतलब कस्टमर ने उसका पेमेंट नहीं किया. तो इस केस में रिसीवर कौन होगा और गिवर कौन होगा? ऐसे तो इसमें दो एंट्री बनती है, लेकिन दो की जगह पर हम लोग क्या एक एंट्री बनाएंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक. कैसे दो एंट्री से एक एंट्री बने? इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं. इसके लिए एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जब कस्टमर से हमको चेक मिला तो हमने क्या एंट्री बनाई थी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. फिर इस चेक को हमने कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन. जब ये डिसऑनर्ड हुआ तो रिवर्स क्या करेंगे? इसका रिवर्स कस्टमर डेबिट टू चेक इन हैंड, और यहाँ पे इसका भी रिवर्स चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो हम यहाँ देख रहे कस्टमर डेबिट टू चेक इन हैंड और यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक. चेक इन हैंड डेबिट टू क्रेडिट दोनों में ये कैंसिल होकर एंट्री क्या बचेगी? कस्टमर
डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसलिए वहाँ पर एंट्री जो है वो क्या है, कस्टमर डेबिट। जब ये चेक मिला तो हमने क्या एंट्री बनाया, कस्टमर से जब हमको चेक मिलता है उसको उसी दिन हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो क्या एंट्री करते हैं, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। जब ये डिसऑनर्ड होगा मतलब कस्टमर इसका पेमेंट ना करे तो इसको रिवर्स कर दो, कस्टमर डेबिट टू चेक इन हैंड। और इसी का उल्टा बैंक अकाउंट, जब बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और डिसऑनर्ड हुआ तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक इन हैंड डेबिट और क्रेडिट दोनों में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसलिए यहाँ पर जो एंट्री है चेक डिसऑनर्ड होने के लिए वो क्या एंट्री है, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When check received from a customer and discount allowed to him and if the check is deposited into same day on the bank, receiver कौन हुआ, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट मींस इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। गिवर कौन है, कस्टमर, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अगर ये डिसऑनर्ड हो जाएगा तो फिर इसी को भी रिवर्स कर दिया जाए, जैसे इसमें किए थे। क्या था, कस्टमर टू बैंक, तो इसमें क्या होगा, कस्टमर डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, यहाँ डेबिट में तो यहाँ पे क्रेडिट। When payment is made by issue of check, अगर किसी को भी हम चेक से पेमेंट देते हैं तो जो पर्सन रिसीवर होगा उसको डेबिट, चेक गोज आउट हो रहा है और चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक। बैंक गिवर है तो रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। जिस पर्सन को चेक दिए राम श्याम मोहन, पर्सनल अकाउंट जो भी होगा उसको डेबिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज पर्सन इज द रिसीवर, आइदर आर्टिफिशियल नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव, और बैंक इज द गिवर। रिसीवर को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं। फिर when expenses are paid by issue of check, एक्सपेंस के लिए क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पेमेंट चेक से कर रहे हैं, चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक। बैंक गिवर है तो गिवर को क्रेडिट करते हैं, मींस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज को क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और गिवर कौन है, बैंक, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When interest is charged by bank, बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है, चार्ज कर रहा है, तो इट इज द एक्सपेंस फॉर बिजनेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When बैंक इज अलाउड इंटरेस्ट, तो हम पास इनकम है और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक चार्जेस some amount for the service, when bank charges some amount for the service recovered rendered by him, bank charges some amount for the service rendered by him, in that case bank charges the expense account debit, so bank charges account debit to bank account, so these are the special entries relating to बैंक। इस सारे में आपको बस खाली रूल्स ऑफ जनरल को फॉलो करना है, बाकी आप वेरी इजीली कर सकते हैं। जब हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करते हैं, कैश गया, कैश को क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश बिजनेस में आया, कैश को डेबिट करेंगे और बैंक गिवर है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। When check, draft, etc. received from the customer are deposited into bank on the same day, इस कंडीशन में रिसीवर कौन हुआ, बैंक में डिपॉजिट सेम डे करे तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक, और गिवर कौन है, कस्टमर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। When check, draft, etc. are received from the customer and not sent to bank on the same day, मतलब वो हमारे पास ही है, तो इसके लिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और कस्टमर गिवर है तो टू कस्टमर्स अकाउंट। If these checks on the date when above check, draft, etc. are sent to bank,
चेक ड्राफ्ट को बैंक में सेंड किया तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक, और हमारे पास से चेक और ड्राफ्ट जा रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। When a customer directly deposited into our bank account, so receiver is the bank and giver is the customer. So bank account will be debit and customer account will be credit because receiver debit, giver credit. When a check previously deposited into bank is dishonored, इसमें रिवर्स कर देंगे कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये हमने देखा था कैसे आया, इस इंट्री के बेसिस पर ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था। जब चेक मिला तो चेक इन हैंड टू कस्टमर, बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक टू चेक इन हैंड। जब डिसऑनर्ड होगा तो इसको रिवर्स करेंगे, चेक इन हैंड कट जाएगा, क्या बचेगा, कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर in the case of ever check is dishonored, when a check is received from a customer and discount is allowed to him if the check is deposited into deposited into the bank on the same day। तो रिसीवर कौन है इसमें, बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिए तो बैंक, और गिवर कौन है, कस्टमर। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। In the case the above check is dishonored, the discount allowed to customer will be also withdrawn। इसी को रिवर्स कर देंगे, customer debit to bank account to discount allowed account। When payment is made by issue of a check, तो इस कंडीशन में जिस पर्सन को भी चेक देंगे that person is the receiver will be debit and check goes out। और this check का पेमेंट कौन करेगा, बैंक। In the place of check we use the word bank, मतलब पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या जिसको भी हमने दिया रिसीवर डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्स वाई जेड जो भी होगा उसको डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। When expenses are paid by bank, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इसको चेक किए, चेक का पेमेंट बैंक करेगा, क्रेडिट करेगा, मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक की जगह पर बैंक लिखेंगे। When cash is withdrawn from bank for the personal use of proprietor, proprietor के personal use को हम लोग क्या कहते हैं, drawings को, drawings को डेबिट करेंगे, पेमेंट कौन कर रहा, बैंक, बैंक इज द गिवर तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। When interest is charged by bank, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को। When interest is allowed by bank, इंटरेस्ट को क्रेडिट, बैंक को डेबिट। ये आ तो रहा है कैश, लेकिन कैश कहाँ डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा, बैंक में, इसलिए किसको डेबिट करेंगे, बैंक। इस यहाँ पर भी वही है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट एक्सपेंस और कैश जा रहा है, लेकिन ये कैश डायरेक्टली बैंक से जा रहा है, इसलिए कैश की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर भी कैश आ रहा है लेकिन कैश डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो जा रहा है, इसलिए कैश के प्लेस पर किसको डेबिट कर रहे हैं, बैंक को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड लार्ज बैंक चार्जेस, when bank charges some amount for the service rendered by him, bank charges it is the expense nominal account, so it is debit। होता तो कैश में पेड, लेकिन ये कैश डायरेक्टली कहाँ से पेड हो रहा है, बैंक से, बैंक चार्ज कर रहा है, इसलिए कैश की जगह पर क्या यूज होगा, बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दीज आर द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक्स, मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन ये सारे हैं जिसमें कैश की जगह पर हमको क्या यूज करना होता है, बैंक। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पर भी जो भी रूल्स इफ यू नो द रूल्स ऑफ जनरल डेबिट एंड क्रेडिट देन इट इज नॉट नेसेसरी टू नो दीज रूल्स। यू कैन वेरी केवल एक चीज देखना कि जब हमको चेक किसी कस्टमर से या ड्राफ्ट किसी कस्टमर से मिलता है और उसको उसी दिन बैंक में जमा करके नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो चेक और ड्राफ्ट की जगह पर क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और जिस दिन उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। बाकी के लिए हमको कोई रूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, ओनली यू नो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ जनरल, देन यू कैन वेरी इजीली पार्ट ऑल दिस बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यही आपको पूरी अकाउंटेंसी है जो हमने पूरे 9 पार्ट्स में आपको कंप्लीट किया। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और एक दिन में सारा बताना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने डीपली बताया कि कोई भी अगर स्टूडेंट इसको देखे तो उसको कंफ्यूजन ना हो। शुरुआत हमने किया था अकाउंट्स के टाइप से, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, फिर हमने
रूल्स को बताया, डेबिट और क्रेडिट, फिर बताया कि डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, डेबिट को कैसे लिखते हैं, क्रेडिट को कैसे लिखते हैं, फिर नरेशन कैसे बनाते हैं, फिर जनरल का फॉर्मेट क्या है, फिर उसके बाद हमने कंपाउंड एंट्री बताया, कंपाउंड एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर हमने डिस्काउंट को बताया कि डिस्काउंट दो तरह का होता है, रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फिर हमने बताया कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है, फिर हमने स्पेशल एंट्रीज को देखा, लगभग 15 स्पेशल एंट्री थी, इसको अकाउंटिंग की बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और फिर लास्ट में हमने आज देखा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को हम लोग अकाउंटिंग की बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें फर्स्ट लेसन अकाउंटिंग के जनरल के लिए, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन बिना इसके हमको अकाउंट आएगा भी नहीं, ये सर्टेन है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक हम इसको अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक हम अकाउंट के कोई भी चैप्टर को इजीली अंडरस्टूड नहीं कर सकते। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस जनरल चैप्टर, दैट मीन्स यू कैन understood everything in accounts from beginning to the end. There is no problem arise in account in future और present और past, कभी भी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी अगर हम ये रूल्स को जानते हुए अकाउंटिंग की बुक में ये सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।